خدا یسوع مسیح کے پرفضل اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر سے خدا کے پاک اور مقدس کلام کو لے کر آپ کے ساتھ ہوں، اور آج ہم خدا کے پاک اور مقدس کلام میں سے خدا یسوع مسیح کے بہت قریبی شاگرد پطرس کے بارے میں ایک بات کرنے والے ہیں۔ مقدس کلام میں تحریر ہے کہ پطرس جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے آئے تو ہاں کلام کہتا ہے اس نے یسوع مسیح کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اس طور سے پیش کیا جیسے وہ یسوع کا بڑا محافظ ہو، اور لکھا ہے اس کے مخالفوں پر اس نے وار کیا۔ آج ہم اس کی بات کرنے لگے ہیں جس کا نام شاگردوں میں سب سے پہلے، رسولوں میں سب سے پہلے لیا جاتا ہے پطرس کی زندگی میں۔ لیکن پطرس مشکل کے اس وقت میں کس پر لعنت کر بیٹھا۔ آئیے آج مقدس کلام میں سے پطرس نے تب جب خدا یسوع مسیح کو پکڑ لیا گیا، اور کلام میں لکھا ہے جیسے کہ جب چرواہے کو مارا گیا اور بھیڑیں پراگندہ ہوئیں تو اس مشکل وقت میں پطرس نے کس پر لعنت کی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو میں چاہوں گا پطرس کی زندگی سے جڑے چند ایک باتیں ہمیں ضرور پتہ ہوں۔ یاد رہے پطرس جسے ہم پطرس رسول کے نام سے جانتے ہیں، حقیقت میں مقدس کلام میں لکھا ہے اس کا نام شمعون ہے۔ شمعون عبرانی نام ہے جس کا مطلب ہے سن لینا، سو خدا سنتا ہے۔ سو عبرانی میں شمعون جو ہے حقیقت میں پطرس کا نام شمعون تھا، اور مقدس کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے شمعون کو یہ لقب دیا۔ یاد رہے لقب کا مطلب ہے کسی خوبی کو، خاصیت کو، کام کو دیکھ کر کوئی اسے مخاطب کرنے کے لیے کوئی اور نام دیا جائے، اسے پکارا جائے، وہ لقب کہلاتا ہے۔ اور مقدس کلام کہتا ہے کہ یسوع نے شمعون کو پطرس کا لقب جو ہے وہ دیا، جس کا مطلب ہے چٹان، جسے یونانی میں اگر بات کریں، پطرس یونانی جو ہے وہ نام ہے جس کا مطلب ہے چٹان، اور ایرامی زبان میں کائفا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح نے شمعون کو پطرس کہہ کر پکارا، بعد میں جسے کیفا بھی کہا گیا کیونکہ ایرامی زبان میں پطرسی کو کیفا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پطرس کے والد کا نام یونا تھا، اور مقدس کلام کہتا ہے کہ پطرس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے اندریاس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا رسول تو تھا، لیکن وہ پطرس کا سگا بھائی بھی تھا۔ سو ایک طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے بھائیوں کی 2 جوڑیاں تھیں، ایک پطرس اور اندریاس، اور مقدس کلام کہتا ہے یعقوب اور یوحنا جو زبدی کے بیٹے تھے وہ بھی آپس میں بھائی تھے۔ اور مقدس کلام کہتا ہے یہ گلیل کے صوبہ میں بیت سیدا میں جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ پیشے کے اعتبار سے پطرس ماہی گیر تھا اور شادی شدہ بھی تھا۔ مقدس کلام میں آپ کو یاد ہوگا جہاں لکھا ہے کہ یسوع نے اس کی ساس کو تپ میں پڑے دیکھا اور اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اسے صحت دی۔ پطرس یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے بہت باتوں میں خاص اور منفرد۔ کلام میں لکھا ہے یسوع جھیل پر چلتا آ رہا ہے، پطرس دیکھتا ہے، خوفزدہ ضرور شاگرد ہوئے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ خداوند ہے تو کہتا ہے خداوند اگر تو ہے تو مجھے بھی اجازت دے، میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کہا جا، اور کلام میں لکھا ہے پطرس پانی پر چلنے لگا۔ سو ایک خاص پطرس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ استاد جیسا بننا چاہتا ہے، اور یہ خوبصورت بات ہے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے جب یسوع کے شاگرد یسوع کے ارد گرد جو لوگ ہیں یسوع کے بارے میں مختلف رائے قائم کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ یہ ایلیا ہے، کوئی کہتا ہے یرمیا ہے، کوئی کہتا تھا کوئی نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، تو کلام میں یسوع نے شاگردوں سے پوچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں فرق نہیں پڑتا، تم کیا سوچتے ہو فرق پڑتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے پطرس آگے آیا اور اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یسوع نے بھی کہا کہ پطرس یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے، اور میں تجھے بتاتا ہوں تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ اس پتھر پر
पतरस पर नहीं, पतरस के उस ईमान पर कि तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, इस पर कलीसिया जो है वो कायम की जाएगी। सो खूबसूरत ईमान पतरस का जो यीशु पर था कि तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और इसी पर आज चर्च जो है वो कायम है। पतरस खुदाम यीशु मसीह के 3 खास शागिर्दों में से पतरस, याकूब और यूहन्ना अक्सर हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। यीशु 3 शागिर्दों के साथ अलग नजर आता है, चाहे वो यायर की बेटी को जिंदा करना हो, चाहे वो पहाड़ पर दुआ करनी हो। तो कलाम में लिखा है इन ये अक्सर 3 शागिर्द साथ साथ यीशु के नजर आते हैं। इसी ने कहा जब खुदाम यीशु मसीह उस फसह को खा रहे थे तो लिखा जब यीशु ने पांव धोना शुरू किए तो इसे उस्ताद की ऐसी गैरत और बात आई, उसने कहा खुदावंद तू अब तक मेरे पांव धोने ना पाएगा। तो कलाम में लिखा यीशु ने कहा अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू पता मेरे से शरीक नहीं। खुदावंद से कहता खुदावंद फिर अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे मेरे हाथों को और मेरे सर को भी सब कुछ मुझे धो डाल। तो खुदावंद ने कहा जो नहा चुके उन्हें पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं। पतरस खुदावंद यीशु के उन शागिर्दों में से भी है जब खुदावंद यीशु ने शागिर्दों पर यह जाहिर किया कि वक्त आएगा कि तुम मेरी बाबत ठोकर खाओगे और मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो कलाम में लिखा है पतरस आगे आया और कहता है खुदावंद सब तुझे छोड़ जाएं, लेकिन मैं मुश्किल की उन घड़ियों में भी अगर कोई तुझ पर आँच आई, तुझ पर कोई बात आई तो मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार, मैं जान देने को भी तैयार हूं। तो यीशु ने कलाम में लिखा है कि उस पर इंकशाफ किया। हाँ लिखा है उसने मुश्किल वक्त में सरदार काइन के नौकर पर अपना हाथ भी चलाया, उसका दाहिना कान भी उड़ाया, लेकिन यीशु ने तो खुद का मियां अपनी तलवार को मियान में रख लिया। यीशु ने उस पर यह जाहिर कर दिया जब उसने कहा खुदा मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं। तो यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं तो आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। मुकद्दस कलाम में यीशु ने उसे कहा कि इससे पहले के मुर्ग 2 बार बांग दे यू विल डिनाई 3 टाइम्स, तू मेरा इनकार कर देगा कि तू मुझे नहीं जानता। गो के वो कह रहा था खुदा मैं तो तेरे लिए मरने को तैयार। और आगे मुकद्दस कलाम में तहरीर है उसी रात जब खुदावंद यीशु गतसमनी बाग में है और दुख और तकलीफ जो आगे नजर आ रहा था, तो कलाम में लिखा यीशु ने कहा बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मर्जी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और उसने शागिर्दों से कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और मुकद्दस कलाम कहते हैं उसी दिन जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उसका अपना शागिर्द यहूदा इस्करियोती एक खास ग्रोह को यीशु को पकड़ने के लिए लेकर आया, और कलाम में लिखा है यीशु मसीह को गतसमनी बाग से रात गए पकड़ा गया। और फिर जब उसे पकड़ा गया तो कलाम कहते हैं पतरस दूर से यीशु के पीछे पीछे चल रहा है। और मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि जब उसे अदालत में लेकर आए तो पतरस दूर से इस सारे माजरे को देख रहा था और देख रहा था कि उसके खुदावंद पर क्या फैसला दिया जाता है। मुख्तलिफ गवाहों को पेश किया गया ताकि यीशु पर कोई इल्जाम साबित किया जाए। मुख्तलिफ गवाहों ने आकर मुख्तलिफ बातें की, लेकिन कोई ऐसी बात ना निकली जिस पर यह कहा जाए कि यीशु कत्ल के लायक है। फिर किसी झूठे गवाहों के वसीला से आखिरकार उन्हें यह बात मिली कि उसने तो कहा था कि मकदस को ढाएगा और फिर दोबारा बनाएगा। ऐसी मन घड़त बातें यीशु के बारे में कहकर जिससे उस पर इल्जाम साबित किया जाए, कलाम ने कहा यीशु पर साबित करने की कोशिश की जा रही थी। और पतरस इस सारी बातों को दूर से बैठकर अदालत में चुप करके देख रहा था कि उस खुदावन को जो उनका मालिक है, जिसके साथ उन्होंने जीने और मरने के वादे किए हैं, जिसके साथ उन्होंने गलील में और सूबा यहूदिया में कसरत से लोगों की खिदमत की है, आज उन्हीं अदालतों में यीशु मसीह को पकड़ा गया और अदालत में खड़ा किया गया। तो कलाम में लिखा है उसी अयाम में, इसी असना में
थोड़ी देर के बाद लिखा है, एक के बाद एक कोई शख्स, एक लौंडी कलाम में लिखा है, उसने आकर पतरस से कहा, मुझे लगता है तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने कहा, मैं तो उसे नहीं जानता। फिर दूसरी बार किसी ने कहा, और फिर तीसरी बार लिखा, थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर पतरस वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिर मुर्ग ने बांग दी। अब अगर यहां पर उर्दू का जो ट्रांसलेशन है उसे पढ़ा जाए तो अक्सर इसे पढ़ने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं बाइबल मुकद्दस के शागिर्द हैं, वो गलती ये करते हैं, वो ये समझते हैं कि खुदावंद के मुताबिक पतरस ने जब ऐसा कहा, इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा, तो उन्हें ऐसा मालूम होता है जैसे वो खुदावंद यीशु उस्ताद के ताल्लुक से कोई गलत बात कह रहा हो। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मुकद्दस कलाम में अगर आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ें, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में बड़ा खूबसूरत उसका ट्रांसलेशन किया गया है। वहां लिखा है, then he began to invoke a curse on himself। इसका मतलब यह है कि वो ये कसम खाकर कि मुझ पर खुदा की लानत हो, अगर मैं इस आदमी को जानता हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं इस आदमी को नहीं जानता। सो अपने बारे में बद्दुआ कि खुदावंद मुझसे सख्ती से पेश आए, मुझ पर खुदा की लानत हो, अगर मैं इसको जानता हूं। और मुकद्दस कलाम में लिखा है, पतरस जब उसने ये 3 बार यीशु का इनकार किया तो कलाम के लिखा है, फिर मुर्ग ने बांग दी, और लिखा है पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और लिखा वो बाहर जाकर जार जार रोया। अब मुकद्दस कलाम में लिखा है, पतरस समझ तो ये रहा था कि वो यीशु मसीह के साथ खड़ा रह सकता है, उसके लिए जान भी दे सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। पतरस इनकार भी कर गया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यीशु का इनकार भी किया, और फिर अपने आप पर लानत करके कहने लगा कि मुझ पर खुदा की लानत हो, मैं सच कह रहा हूं, मैं इस शख्स को नहीं जानता। और कलाम में लिखा है, जब यीशु से उसकी नजरें मिली, मुर्ग ने बांग दी, तो उसे यीशु का कहा, उसका कहना याद आया, और लिखा वो जार जार बाहर जाकर रोया। अफसोस, दुख और तकलीफ, पछतावा कि मैं उस्ताद के साथ खड़ा नहीं रह सका, मैं इनकार कर गया। और मुकद्दस कलाम में लिखा है, यीशु को आखिरकार मुख्तलिफ सारी रात अदालतों में ले जाने के बाद उस पर मौत का फतवा दिया गया और उसे मसलूब कर दिया गया। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि अब शागिर्द खुदावंद यीशु के जी उठने की पूरी बात को क्योंकि समझ नहीं पाए थे, हालांकि यीशु ने बताया था कि वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन नहीं समझे। कलाम में लिखा है, जब यह खबर उन्हें औरतों से पहले मिली तो कलाम में लिखा है, पतरस ही है जिसने यीशु के इनकार करने पर जार जार रोया। लेकिन पतरस दौड़ा और सबसे पहले यीशु की कब्र पर जाकर उसने उस कफन को देखा। फिर मुकद्दस कलाम में लिखा वापस आए, औरतों ने कहा यीशु मुर्दों में से जी उठा। पतरस फिर से दौड़ा और लिखा है वो यीशु की कब्र पर दोबारा दौड़ कर आया। उस्ताद से मिलने की बेचैनी और बेताबी है, काश यीशु से मिल सके और कह सके खुदा मुझे मुआफ करना, मुझसे गलती हुई, मैंने तो तेरे साथ वादा किया था मैं जान देने तक वफादार रहूंगा, नहीं कर सका। और मुकद्दस कलाम में लिखे हैं, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पतरस से मिला और सबसे पहले पतरस को यह शर्फ मिला कि वो यीशु मसीह से मिल सके। और फिर कलाम में आपको याद होगा यीशु ने, इससे पहले आग में बाला पर उठाए जाते, यीशु ने 1 बार नहीं 3 बार उसे पूछा, पतरस क्या तू दूसरों से ज्यादा मुझे अजीज रखता है, मोहब्बत रखता है? तो पतरस ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, फिर 3 बार कहा, हाँ यीशु तू तो जानता है मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं।
क्या हम सीखते? एक बात जो पतरस की जिंदगी से हम सीख सकते हैं, उसके बाद कलाम में लिखा है उसने अपने गुनाहों पर पछताया। अगर आप और मैं गलती करें तो पछताने में बेहतरी है। अब कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। दूसरी बात हम पतरस की जिंदगी सीखते हैं कि उसके बाद उसने यीशु की बात को माना, और कलाम में लिखा है कि बाला खाना में रूहुल कुद्स का दुआ में वक्त गुजारा, ठहरे रहे। और फिर यही पतरस जिसने तब इनकार किया, दलेरी के साथ यीशु का इकरार भी किया, और लिखा है ऐसा कलाम खुदा ने उससे दिया पाकरू के वसीला से कि पहली बार ही तकरीबन 3000 लोग खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आए। और एक और खूबसूरत ख्याल जो हम यहां से सीखते हैं कि मुकद्दस कलाम में यीशु मसीह की तालीम क्या है। पतरस ने खुद पर लानत करके कहा मुझ पर खुदा की लानत हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं शख्स को नहीं जानता। लेकिन याद रहे मुकद्दस कलाम में तहरीर यह है कि हम ना सिर्फ अपने बारे में अपने खुद से मोहब्बत रखें, अपने बारे में कभी गिले शिकवों के साथ अपनी जात अपनी जिंदगी के बारे में बददुआएं और बुरा भला कहना मुनासिब नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में तो यहां तक लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, और जो तुमसे अदावत रखे उनको भला करो, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए दुआ करो। किसी के लिए बददुआ ना चाहिए। मुकद्दस कलाम में लिखा क्या चश्मे के एक ही मुंह से दो तरह का पानी निकल सकता है? क्या हम मीठा और कड़वा, क्या हम ये कह सकते हैं कि मुंह से हम दुआ भी दें और बददुआ? मुकद्दस कलाम में लिखा हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो बरकत चाहना जरूरी है। लिखा है हम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करें, लिखा जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो। काश आप और मैं पतरस की जिंदगी से ये सीख सके। उसने गलती की लेकिन वापस आया, इकरार किया, जार रोया, और मुकद्दस कलाम में लिखा खुदा ने उसे बहाल किया और किसी तरह का गुनाह उसके जिम्मे ना लगाया। काश आप और मैं जब गलती करें मुआफी मांगे और पतरस से ये जान सके। काश आप और मैं जान देने तक वफादार रहे ताकि उस जिंदगी के ताज को हासिल करें और अपनी जुबान से किसी के लिए बददुआ ना चाहें। काश खुदावंद का ये कलाम आपके लिए और मेरे लिए बरकत का सबब बने और हम इसके वसीला से बहुत सारा फल लाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो।